Hello everyone. In the previous chapter, we learned about the fundamental unit of life. In this chapter, we read some cell theory, cell organelles, plasma membrane, nucleus. This is the structure of endocytosis, exocytosis, cell membrane, cell wall, plant cell, nucleus. What is the difference between prokaryotic and eukaryotic cells? Endoplasmic reticulum. Some cell organelles we studied in the previous. This is the endoplasmic reticulum. Basically, endoplasmic reticulum. There are two types of endoplasmic reticulum: rough endoplasmic reticulum and smooth endoplasmic reticulum. In the rough endoplasmic reticulum, ribosome is present, and in the smooth endoplasmic reticulum, ribosome is absent. That's why rough endoplasmic reticulum is called rough endoplasmic reticulum, because on the surface of rough endoplasmic reticulum, ribosome is present. And what is the main function of ribosome? Synthesis of protein. This is the main function of ribosome, protein synthesis. Or now smooth endoplasmic reticulum. The smooth endoplasmic reticulum, there is no ribosome present on the surface of smooth endoplasmic reticulum. That's why it is called as the smooth endoplasmic reticulum. The main function of smooth endoplasmic reticulum, synthesis of fat molecule. तो fat molecule का synthesis कौन करता है? Smooth endoplasmic reticulum. This is the diagram of smooth endoplasmic and rough endoplasmic reticulum. This is the smooth endoplasmic reticulum. This is the diagram of smooth endoplasmic reticulum, because there is no ribosome is present. And this is the structure of rough endoplasmic reticulum, because some ribosomes are present. These green look like as a राइबोसोम. ये जो ग्रीन पार्ट, जो ग्रीन डॉट्स दिख रहे हैं, ये क्या है? राइबोसोम को शो कर रहे हैं. तो दैट्स व्हाई दिस इज रफ सरफेस एंड दिस इज द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंड देयर इज नो राइबोसोम. इट इज रफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. नाउ आवर नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल इज Golgi apparatus. It was first described by a scientist, Camillo Golgi. Who discovered the Golgi apparatus? The scientist is Camillo Golgi. It is a system of membrane bound vessels. जो Golgi apparatus है, this is the membrane bound cell organelle. Golgi apparatus क्या है? Membrane bound cell organelle है, और cysteine is प्रेजेंट, कि वहां उसमें क्या प्रेजेंट है? सिस्टेन्स प्रेजेंट है. इट फंक्शन इंक्लूड द स्टोरेज एंड 62 मॉडिफिकेशन एंड पैकेज ऑफ सेल प्रोडक्ट्स. ये इसका जो मेन फंक्शन है क्या है? स्टोरेज का फंक्शन है. स्टोर करेगा ये, और उसके बाद सेल प्रोडक्ट्स के अंदर क्या करेगा? मॉडिफिकेशन भी करेगा. और इसमें द कॉम्प्लेक्स शुगर आर मेड फ्रॉम सिंपल शुगर इन द Golgi apparatus. जो कॉम्प्लेक्स शुगर है वो कहाँ किसमें कन्वर्ट हो रही है? सिंपल शुगर के अंदर. और कहाँ बन रही है वो? Golgi apparatus के अंदर. और इट इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि लाइसोसोम आर अराइजेस फ्रॉम Golgi apparatus. This is the important question. From where lysosome arises? So lysosome arises from Golgi apparatus. So it is involved in the formation of lysosome. So this is the structure of lysosome. This is cisternae. This part is called cisternae. This is lumen. This is the cis phase and this is the trans phase. एंड ये क्या है? न्यूली फॉर्म वेसल्स. ओके, और ये इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेसल्स है. तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ Golgi apparatus. नाउ नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल इज लाइसोसोम. जो नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल है वो क्या है हमारा? लाइसोसोम. बेसिकली दे कंटेन मेम्ब्रेन बाउंड सैक. लाइसोसोम क्या है? बेसिकली एक मेम्ब्रेन बाउंड सैक लाइक स्ट्रक्चर है. सैक मतलब बैग लाइक स्ट्रक्चर है. और कैसा है? मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स है विथ पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स. जो लाइसोसोम है, लाइसोसोम हैव सम पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम. दैट्स व्हाई इट कैन डाइजेस्ट ऑल द डैमेज सेल्स.
तो इसमें क्या है, एंड एंजाइम्स आर मेड बाय RER. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो लाइसोसोम्स में एंजाइम्स है वो किसके थ्रू बन रहे हैं, बाय RER, टू डाइजेस्ट द बर्न आउट सेल ऑर्गेनेल्स. व्हेन द सेल गेट डैमेज, लाइसोसोम में बर्स्ट एंड देन एंजाइम डाइजेस्ट देयर ऑन सेल. तो जो दैट्स वाई जो लाइसोसोम इज कॉल्ड सुसाइडल बैग ऑफ सेल. इट इज अ वेस्ट डिस्पोजेबल सिस्टम ऑफ द सेल. तो बेसिकली जो लाइसोसोम है, लाइसोसोम को हम क्या कह रहे हैं, सुसाइडल बैग ऑफ अ सेल, बिकॉज लाइसोसोम कैन डाइजेस्ट ऑल द सेल, और जो सेल ऑर्गेनल्स जो डैमेज हुए हैं सेल के अंदर उनको क्या करता है, डाइजेस्ट करता है, और उनको एज अ वेस्ट डिस्पोजेबल भी वो क्या करता है, सेल से बाहर निकाल देता है. दैट्स वाई जो लाइसोसोम है उसको हम क्या कह रहे हैं, सुसाइडल बैग. तो दिस इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाई लाइसोसोम इज कॉल्ड एज सुसाइडल बैग, बिकॉज लाइसोसोम कैन, वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट, लाइसोसोम कैन एनगल्फ देयर ऑन सेल्स. That's why it is called as the suicidal bag. तो लाइसोसोम क्या कर रहा है, अपनी ऑन सेल्स को क्या कर जाता है, एंगल्फ कर जाता है. तो इसलिए हम उसको क्या कह रहे हैं, सुसाइडल बैग ऑफ अ सेल. इट इज अ वेस्ट डिस्पोजेबल सिस्टम ऑफ द सेल. वेस्ट डिस्पोजेबल सिस्टम बिकॉज लाइसोसोम क्या कर रहे हैं, जो डैमेज सेल है उसको सेल मेम्ब्रेन से बाहर भेज रहा है. तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द वेस्ट डिस्पोजेबल सिस्टम ऑफ द सेल. Now this is the structure of lysosome. In the lysosome, basically lysosome is made up of lipid layer and membrane transport protein. तो लाइसोसोम में क्या प्रेजेंट है, एक तो लिपिड लेयर प्रेजेंट है, दिस इज द लिपिड लेयर, एंड दिस इज द मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन. तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, जो ये प्रोटीन्स का क्या कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं. जो मेम्ब्रेन प्रेजेंट है वो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन प्रेजेंट है, और दिस इज द लिपिड लेयर एंड दिस इज द मेम्ब्रेन ऑफ लाइसोसोम. और बेसिकली जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम प्रेजेंट है, विच टाइप ऑफ एंजाइम प्रेजेंट इन द लाइसोसोम, तो दिस इज द हाइड्रोलाइटिक enzyme which is present into the lysosome. And what is the function of lysosome? It digests damaged cells. ये क्या कर रहा है, damaged cells को क्या कर रहा है, ये जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है वो क्या करेगा, डैमेज सेल को क्या करेगा, डाइजेस्ट करेगा. That's why it is called as suicidal bag. Our next cell organelle is mitochondria. It is very important. Basically mitochondria is covered by a double membrane. Mitochondria is covered by a double membrane structure. So basically mitochondria, it is a double membrane structure. Outer membrane is very porous and the inner membrane is deeply folded. तो mitochondria की outer membrane कैसी होती है, पोरस है. इट मीन्स कि इसमें पोर्स प्रेजेंट है. तो जो आउटर मेम्ब्रेन इज porous, in the outer membrane pores is present, that why it is called as porous. The inner membrane is deeply folded. These folds create a large surface area for ATP. This is very important. जो ये folds है, ये folds किसमें help कर रहे हैं, these folds are help into the synthesis of ATP. And what is ATP? This is the adenosine triphosphate. This is the full form of ATP, adenosine triphosphate. And basically what is ATP? This is the energy molecule. यानी ATP क्या है, एनर्जी मॉलिक्यूल है. तो उसके सिंथेसिस में कौन हेल्प कर रहा है, फोल्डेड जो ये जो फोल्डेड इनर मेम्ब्रेन है वो क्या कर रही है, सरफेस एरिया क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है. दैट्स व्हाई ATP इजीली सिंथेसिस, ATP का ज्यादा से ज्यादा सिंथेसिस हो सके. ATP is the energy currency of a cell. ATP क्या है, बेसिकली this is a energy currency of a cell. So what is ATP molecule? This is the energy molecule or energy currency of the cell. Mitochondria are called as a powerhouse of the cell. This is very important. Why mitochondria is called as a powerhouse of the cell? Because mitochondria can synthesize their own protein and mitochondria have their ATP molecule. That's why it is called as a powerhouse of the cell. तो mitochondria के पास क्या है, ATP molecules है
और वो क्या कर सकते हैं, अपनी एनर्जी जनरेट कर सकते हैं. दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज द पावर हाउस ऑफ द सेल. Mitochondria have their own DNA and ribosome. It is very important कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है उनके पास, माइटोकॉन्ड्रिया के पास क्या है, DNA and ribosome. तो that's why it can make their own proteins, because protein are made from the, protein किससे बनते हैं, प्रोटीन आर मेड फ्रॉम अ राइबोसोम. तो जो मेन फंक्शन ऑफ राइबोसोम इज सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन. तो जो प्रोटीन सिंथेसिस का मेन फंक्शन किसका है, राइबोसोम का है. तो जो राइबोसोम डीएनए के अंदर प्रेजेंट है तो वो क्या करेंगे, प्रोटीन का सिंथेसिस करेंगे. तो दैट्स व्हाई जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो क्या करेगा, अपना प्रोटीन खुद बना सकता है. तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. इन दिस स्ट्रक्चर, दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन. ये क्या है, हमारी आउटर मेम्ब्रेन है. दिस इज द डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर एंड दिस फोल्डेड इज इनर मेम्ब्रेन. दिस इज फोल्डेड जो स्ट्रक्चर है, दिस इज द इनर मेम्ब्रेन. तो ये हमारी आउटर मेम्ब्रेन और ये फोल्डेड क्या है, हमारी इनर मेम्ब्रेन. एंड सम स्पेस प्रेजेंट बिटवीन इनर एंड आउटर मेम्ब्रेन. दिस इज जो स्पेस है इज कॉल्ड इंटरमेम्ब्रेन स्पेस. This space is called intermembrane space, and some pores are present on the surface of the outer membrane. That's why it is called as porous outer membrane. Some granules are present and some crystals are present on the inner membrane. That the main function of these crystals is ATP synthesis. And this is the mitochondria of DNA, and this is ribosomes which is present into the mitochondria. So this is the structure of mitochondria. Now our next cell organelle is plastid. Now plastid, they are present only in plant cell. Where plastid is present, plastid present into the plant cell. So basically they are two types. First is chromoplast and second is leucoplast. Chromoplast, all color plastids are included into the chromoplast. जितने भी color plastids है सब किस में आएंगे, chromoplast में. Like green, yellow, orange, all color pigment are included into the chromoplast. सभी कलर प्लास्टिड्स, जितने भी कलर प्लास्टिड है सब किस में आ रहे हैं, क्रोमोप्लास्ट में. क्रोमोप्लास्ट ग्रीन पिगमेंटेड एंड यूजफुल इन फोटोसिंथेसिस. क्लोरोप्लास्ट कैसा है, ग्रीन पिगमेंट है, ग्रीन पिगमेंटेड है और किसमें यूजफुल है, इन द फोटोसिंथेसिस. एंड ऑल्सो कंटेन्स वेरियस अदर पिगमेंट लाइक येलो और ऑरेंज. कैसे कलर है, कौन कौन से हैं, येलो, ऑरेंज, इन सब में भी क्या कलरफुल प्लास्टिड्स है, वो किस में आएंगे, क्रोमोप्लास्ट में आएंगे. नाउ नेक्स्ट इज ल्यूकोप्लास्ट. जो ल्यूकोप्लास्ट है कैसा है, कलरलेस है, स्टोर. जो ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस प्लास्टिड है और उसका क्या फंक्शन है, स्टोर मटेरियल सच एज ऑयल्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स. वो किसको स्टोर करता है, ऑयल्स को, प्रोटीन्स को एंड फैट्स को क्या करता है, स्टोर. प्लास्टिड आर ऑल्सो कवर्ड बाय डबल मेम्ब्रेन. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. जो प्लास्टिड्स है वो कैसे है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है. द मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्ट्रोमा, सीट एंड एंजाइमेटिक एक्शन. Plastids have their own DNA and ribosome. Basically, there are two cell organelles which have their own DNA and ribosome. The two cell organelles, one is mitochondria and second is plastids. They have their own DNA and ribosome, and that's why they can make their own protein. तो वो this is the question. Name the cell organelles which can make their own protein. So first is mitochondria and second is plastid. Name the cell organelles which have their own DNA and protein. So first is mitochondria and second is protein. So that's why it is very important. Now next is, this is the diagram of plastid. This is thylakoids. तो ये जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स है, दिस रिंग लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड thylakoid and the bunch of thylakoid, this is the bunch of thylakoid is called as the granum. और जो thylakoids attach होते हैं, this is the lamella.
जिससे ये अटैच होते हैं उसे हम क्या कह रहे हैं, लैमिला। और जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, दिस इज थाइलाकॉइड। दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन एंड इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। नाउ नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल इज वैक्यूल। जो नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल क्या है, वैक्यूल। स्टोरेज सैक फॉर सॉलिड और लिक्विड कंटेन्स। तो ये जो वैक्यूल है ये किस तरह का है, ये एक वैक्यूल एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें क्या है, सॉलिड और लिक्विड कंटेन्स स्टोर हम उसमें कर सकते हैं। दे आर स्मॉल इन साइज इन एनिमल्स व्हाइल प्लांट्स आर लार्ज। दिस इज द मेन बेसिक डिफरेंस बिटवीन plant cell and animal cell. In the plant cell, vacuole size is bigger compared to animal cells, and in the animal cell, vacuole size is smaller. तो और जो प्लांट सेल के अंदर ये कितना 50 to 90% सेल वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करता है। जो ये वैक्यूल है ये 50 to 90% सेल वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करता है, ओनली अ वैक्यूल। दैट्स वाई जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस विच इज प्रेजेंट इनटू द प्लांट सेल, इट इज शिफ्टेड टुवर्ड्स द पेरिफेरी, बिकॉज जो वो वैक्यूल है वो क्या कर लेता है, स्पेस कवर कर लेता है। और इट हेल्प्स to provide turgidity and rigidity to the cell. Many substances like amino acids, sugar, organic acids and protein are stored in vacuole. In amoeba, food vacuole is specialized to play an important role. Amoeba के अंदर फूड वैक्यूल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज फूड वैक्यूल से ही वो क्या कर रहा है, फूड को एनगल्फ कर रहा है, डाइजेस्ट कर रहा है, आफ्टर दैट उसको इजेक्ट करता है, बट एनगल्फ कर रहा है तो वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो नाउ वी कंप्लीटेड आवर चैप्टर, ये सेल ऑर्गेनल्स वैक्यूल्स तक हमने कर लिए हैं। नाउ वी सॉल्व सम एमसीक्यू। दीज आर सम एमसीक्यू। फर्स्ट एमसीक्यू इज क्रोमोसोम आर मेड अप ऑफ डीएनए, प्रोटीन, डीएनए एंड प्रोटीन एंड आरएनए। क्रोमोसोम्स किससे मिलकर बने हैं, किससे मिलकर बने हैं, डीएनए से, प्रोटीन से, डीएनए एंड प्रोटीन से या आरएनए से। तो बेसिकली व्हाट इज द आंसर, द आंसर इज सी, डीएनए एंड प्रोटीन। तो क्रोमोसोम आर मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। नाउ नेक्स्ट इज plasmolysis in a plant cell is defined as breakdown of plasma membrane in hypotonic medium, shrinkage of cytoplasm in hypertonic medium, shrinkage of nucleoplasm, none of them. तो इसके अंदर जो प्लाज्मोलाइसिस है, we study about the hypotonic and hypertonic medium in the previous lecture. What is hypotonic medium? In hypotonic medium what happen? In the hypotonic medium जो सेल है, when we put a cell, हम सेल को पुट कर इन अ बाउल, तो जो आउटर मेम्ब्रेन, जो आउटर मीडियम है ऑफ द सेल, उसके अंदर वाटर कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। For example, when we put resin into a bowl which is filled with the water, तो जो resin है it is work like as a cell, और जो वाटर, जो उसके आउटर मेम्ब्रेन में जो वाटर फिल है, जो बाहर की तरफ जो उसके वाटर फिल है बाउल के अंदर, तो वहां पर वाटर कंसंट्रेशन क्या है, हाई है। तो दिस टाइप ऑफ मीडियम इज कॉल्ड हाइपोटोनिक मीडियम। एंड हाइपरटोनिक मीडियम व्हेन वी पुट रेजिन इनटू द शुगर सॉल्यूशन, जो स्वेल रेजिन है उसको हम अब शुगर सॉल्यूशन में रख रहे हैं, तो शुगर सॉल्यूशन के अंदर वाटर कंसंट्रेशन क्या है, लो है, और जो स्वेल रेजिन है उसमें वाटर कंसंट्रेशन क्या है, हाई है। तो दिस टाइप ऑफ मीडियम इज कॉल्ड हाइपरटोनिक मीडियम। सी श्रिंकेज ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्म, डी नन ऑफ देम। तो व्हाट इज द आंसर, द आंसर इज बी, श्रिंकेज ऑफ साइटोप्लाज्म इन हाइपरटोनिक मीडियम। तो व्हाट हैपन इन द प्लाज्मोलाइसिस, लॉस ऑफ वाटर, किसका लॉस हो रहा है, वाटर का। दैट्स व्हाई जो सेल है वो कैसे हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी। तो श्रिंकेज ऑफ साइटोप्लाज्म इन हाइपरटोनिक मीडियम। नाउ नेक्स्ट, which of the following are covered by a single membrane, mitochondria, vacuole, lysosome and plastid? What is the answer? We know that mitochondria is double membrane, lysosome, plastid all are double membrane structure. So what is the answer? Answer B is vacuole. This is the single membrane structure. Now next, the protein and lipids essential for building the cell membrane are manufactured by, जो प्रोटीन एंड लिपिड्स, दीज आर वेरी असेंशियल फॉर सेल मेम्ब्रेन।
तो वो किससे मैन्युफैक्चर्ड होते हैं? दे आर मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपरेटस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या माइटोकॉन्ड्रिया। तो दे आर मैन्युफैक्चर्ड बाय रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो दिस इज द आंसर। नाउ नेक्स्ट, अमीबा एक्वायर्स इज फूड थ्रू अ प्रोसेस टर्म। जो अमीबा एक्वायर्ड करता है फूड को, तो किस प्रोसेस के थ्रू एक्वायर्ड करता है? ए एक्सोसाइटोसिस, बी एंडोसाइटोसिस, सी प्लाज्मोलाइसिस या डी एक्सोसाइटोसिस एंड एंडोसाइटोसिस बोथ। प्लाज्मोलाइसिस इट इज द रॉन्ग आंसर, बिकॉज प्लाज्मोलाइसिस में क्या होता है? वाटर लॉस होता है। एंड नाउ एक्सोसाइटोसिस एंड एंडोसाइटोसिस या बोथ। तो व्हाट हैपन? फूड को एनगल्प कर रहा है, एक्वायर्ड कर रहा है, तो क्या होगा? एंडोसाइटोसिस। दिस इज द राइट आंसर। नाउ सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल वॉज स्टार्टेड बाय। जो सेल है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से डेवलप होती है, तो इट इज गिवन बाय, ये इट वॉज स्टार्टेड बाय ए हैकल, बी विर्चॉव, सी हुक या डी शिल्डन। कि किसने दिया था कि जो सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल वॉज, दिस इज द सेल थ्योरी। सेल थ्योरी है कि जो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, जो न्यू सेल्स है, न्यू सेल्स आर डेवलप फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल एंड इट was started by Virchow. This is the right answer. ये किसके थ्रू स्टार्ट हो रही है? Virchow के थ्रू स्टार्ट हो रही है, तो this is the right answer. Now next question is, organelle without a cell membrane is. ऐसे कौन सा सेल मेम्ब्रेन है जिसमें ऑर्गेनेल विदाउट अ सेल मेम्ब्रेन? ऐसा कौन सा ऑर्गेनेल है जिसमें सेल मेम्ब्रेन एब्सेंट है? तो ए राइसोसोम, बी गोल्जी एपरेटस, सी क्लोरोप्लास्ट, डी न्यूक्लियस। विच ऑफ द सेल ऑर्गेनेल डज नॉट हैव सेल मेम्ब्रेन? तो वी नो दैट गोल्जी एपरेटस, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस ऑल हैव सेल मेम्ब्रेन, बट राइबोसोम, this is the right answer. Ribosome, this is the cell organelle without a cell membrane. Ribosome में कोई cell membrane present नहीं है. Now next question is, lysosome arises from A endoplasmic reticulum, B Golgi apparatus, C nucleus, D माइटोकॉन्ड्रिया। तो लाइसोसोम किससे राइजेस होते हैं? अभी लेक्चर में हमने रीड करा था लाइसोसोम एंड गोल्जी एपरेटस। तो व्हाट इज द आंसर? द आंसर इज गोल्जी एपरेटस। तो लाइसोसोम अराइजेस फ्रॉम गोल्जी एपरेटस। नाउ नेक्स्ट, Which out of the following is not a function of vacuole? इसमें से कौन सा वैक्यूल का फंक्शन नहीं है? A storage, B providing turgidity and rigidity to the cell, C waste excretion, D locomotion. तो what is the, it means कि storage है, वैक्यूल का फंक्शन स्टोरेज है, providing turgidity and rigidity to the cell, this is the function of vacuole, ये भी वैक्यूल का फंक्शन है, waste excretion, this is also the function of vacuole, ये भी वैक्यूल का फंक्शन है। तो व्हाट इज द फंक्शन? दिस इज द लोकोमोशन। ये जो लोकोमोशन वाला है ये वैक्यूल का फंक्शन नहीं है। तो व्हाट इज द आंसर? लोकोमोशन। तो लोकोमोशन वैक्यूल का फंक्शन नहीं है। स्टोरेज है, प्रोवाइडिंग टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू द सेल है, वेस्ट एक्सक्रीशन है, all are the function of vacuole, but locomotion, this is not a function of vacuole. Now we have finished our chapter. हमने हमारा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। थैंक यू।